سب سے پہلے لکھیے را کا بیان، سبق نمبر 14، سبق نمبر 14، را کا بیان۔ لکھ لیا؟ را 5 وجہ سے پر ہوتی ہے، یعنی موٹی ہوتی ہے۔ را 5 صورتوں میں پر ہوتی ہے، اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ 5 صورتوں میں پر ہوتی ہے، صورتوں میں صاد سے صورتوں میں، یعنی 5 وجہ سے پر ہوتی ہے۔ نمبر 1، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ مقتدر بھائی لکھ رہے ہیں؟ جی مول صاحب لکھ رہے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ لکھ لیا سب نے؟ اب لکھے آگے، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ نمبر دو، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ صاحب ایک بار پھر سے بولیے نا۔ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معافی چاہتا ہوں، ذرا لیٹ ہو گیا۔ کوئی دقت نہیں، لکھ لیجیے۔ نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ نمبر 2، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش رہے تو پر ہوگی جی، اور نمبر 2 میں مطلب 2 ہے۔ نہیں، ایک تو پہلے یہ ہے، را کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو پر ہوگا، جی موٹا پڑھنا ہے، اور را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو بھی موٹا ہی پڑھنا ہے، پر بول۔ جی، اس کو سمجھا دوں گا میں، ابھی پہلے لکھ لیجیے، اس کے بعد میں کتاب کھول کر کے سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 لکھیے، را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ آتا ہے تو را پر ہوگی۔ را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ آتا ہے تو را پر ہوگی۔ حروف مستعلیہ، را ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ آتا ہے تو را پر ہوگی۔ نمبر 4 ہوا نا یا نمبر 3 ہوا؟ نمبر 3 ہوا نا؟ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے
اگر زیر عارضی ہو یا پہلے دوسرے کلمے میں زیر ہو تو را پر ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو یا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، دونوں چیز لکھیں. را ساکن سے پہلے یا تو زیر عارضی ہو یا زیر دوسرے کلمے میں ہو. را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو را مشدد پر ہوگی. را مشدد معلوم ہے نا، جس حرف پر تشدید ہوتا ہے اس کو مشدد کہتے ہیں. تو را پر تشدید ہے اس لیے را مشدد ہے. را مشدد پر زبر یا پیش ہو تو را مشدد پر ہوگی. اب صرف پور کا دیکھیے، اس کے بعد باریک کا پڑھیں گے. دیکھیے سب سے پہلا قاعدہ کیا لکھے ہیں؟ نمبر 1 میں کیا لکھے ہیں؟ فیضان کیا لکھے ہیں نمبر 1 میں؟ را کے اوپر زبر اور پیش ہوگا تو پر جی پر ہوگی. دیکھیے پہلی لائن میں دیکھیے را کے اوپر زبر آ رہا ہے. رؤوفن، ربنا، ربما، ردوہا، اس میں پیش ہے، اس میں بھی پیش ہے. تو یہ جتنا بھی را ہے ربنا، اس کو ربنا نہیں پڑھیں گے بلکہ ربنا موٹا کر کے ربنا، رؤوفن، ربما، یہ بھی را پورا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر پیش ہے. ردوہا را کے اوپر پیش ہے اس لیے یہ بھی پور ہے یعنی موٹا ہے. دوسرا نمبر پہ کیا لکھے ہیں؟ دوسرا نمبر پہ لکھے کیا ہے؟ نوٹ پڑھ کر کے بتائیے. یا ساکن سے را ساکن سے پہلے را ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو را ساکن پور ہوگی. ٹھیک، یہاں دیکھیے را ساکن سے پہلے را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن پور ہو رہی ہے. ارسلنا، قرآن میں دیکھیے را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را ساکن پور ہو رہی ہے. یغرور کا میں را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را ساکن پور ہو رہی ہے. سمجھ میں آیا؟ جی بول سر. ہاں 2 لائن تو سمجھ میں آ گیا. تیسرا قاعدہ پڑھیے. ساکن کے بعد اگر حروف مستعلیہ آیا تو را پر ہوگا. ہاں دیکھیے حروف مستعلیہ بھی لکھ لیجیے. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. پھر سے بول دیتا ہوں ایک بار. خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. میں گروپ میں بھیج دیتا ہوں.
ग्रुप में भेज दिया, जिन्होंने लिख लिया ठीक है, नहीं लिखा तो ग्रुप से निकाल लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए मिरसादन, कायदा तो ये होना चाहिए कि रा साकिन से पहले जेर है इसलिए रा साकिन बारीक होगी, लेकिन ये नहीं, बल्कि यहाँ रा साकिन के बाद देखेंगे। अगर रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया आ जाता है तो उसके पीछे नहीं देखेंगे बल्कि उसके आगे देखेंगे। रा साकिन के बाद अगर हरूफ मुस्तालिया है तो पूर पड़ी जाएगी। जैसे मिर सादन लिखा हुआ तो इसको मिर सादन बारीक करके नहीं पढ़ेंगे बल्कि पूर करके पढ़ेंगे। मिर सादन, हमने जो अभी लिखवाया खा साद जाद, देखिए रा साकिन के बाद साद है, मिर सादन, मिर सादन, समझ में आ रहा है ना? जी मुझे हाँ, फिर तासिन में देखिए रा साकिन से पहले जेर है, कायदा तो ये होना चाहिए कि रा साकिन से पहले जेर है इसलिए रा साकिन बारीक होगी, लेकिन यहाँ बारीक नहीं होगी इसलिए कि रा साकिन के बाद देखिए ता आ रहा है, खा सा जाद गैन ता, तो ता है, इसे ये भी रा पूर हो रही है। फिर कतुन में भी रा साकिन के बाद काफ है। ये कायदा नंबर 3 को समझ लिया। अब चौथा पढ़िए क्या है? इरजिई, रा साकिन से पहले जेर अर्जी हो या जेर दूसरे कलमे में हो उसको रापुर होगा। अर्जी नहीं, आरजी। आरजी, हाँ। देखिए ये जेर आरजी है। जेर आरजी किसको कहते हैं? जो जेर खत्म हो जाए बीच से। अब इसको अगर पीछे से मिला करके पढ़ते हैं फिर कतुरजिई पढ़ेंगे, अगर मिला करके पढ़ेंगे। कुरान में आता है या अय्यतुहन नफ्स नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, लेकिन अगर इसको मिला करके पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजिई, ये जेर खत्म हो जाता है। तो या फिर कतुन से मिला करके पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे फिर कतुरजिई, ये जेर खत्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं जेर आरजी, ये कभी भी खत्म हो जाने वाली है। ठीक है। और दूसरी चीज है रा साकिन से पहले दूसरे कलिमे में जेर हो। देखिए अमीर और ताबू, अम एक वर्ड है और ताबू ये एक वर्ड है। तो देखिए रा साकिन से पहले दूसरे कलिमे में जेर है इसलिए जो है रा साकिन पूर हो रही है। समझ में आ गया? थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझसे, थोड़ा मुश्किल हो रहा है उससे। तो स्टार्टिंग के 2-3 उतने ही बोलिए जरा, अब जरा कंफ्यूजन हो रहा है उसमें। अभी हम समझा देंगे, अभी सबका एक एक करके सुनाएंगे, हो जाएगा बराबर इंशाल्लाह। इसको देखिए, हम एक कलिमा है, एक कलिमा एक वर्ड को बोलते हैं। हम एक कलिमा है और ताबू दूसरा कलिमा है। देखिए रा साकिन है, रा साकिन से पहले दूसरे कलिमे में, ये दूसरा कलिमा हो गया क्योंकि दूसरा वर्ड है ना ये अम और ताबू। बल्कि इस मिसाल को छोड़ दीजिए, इस मिसाल को देखिए, रब्बिरजिऊना, रब हम बोलते हैं खुदा को रब, तो रब ये तो एक कलिमा है, एक वर्ड है। अर्जिऊन ये दूसरा कलिमा। अब दूसरा कलिमा में देखिए रा साकिन आ रहा है और रा साकिन से पहले जेर है दूसरे कलिमे में। रब रब में है, अर्जिऊन ये कलिमा है, एक वर्ड है, इसके अंदर नहीं है, रा साकिन से पहले दूसरे कलिमे में जेर है इसलिए रा साकिन पूर हो रही है। समझ में आया? यासीन भाई कुछ समझ में आ रहा है? जी मौसा, जी क्या समझ में आया बताइए आप? रा साकिन से पहले रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलिमे में हो तो क्या नाम है बच्ची का? खतीबा, है खतीबा, खतीबा। कौन सी क्लास में पढ़ रही है अभी? सेकंड। सेकंड। ठीक है, ज्यादा तेज दिखती है माशाल्लाह। ठीक है, आप बताइए
را साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में है, इसलिए रा पूर हो रही है। समझ में आया ना? रब एक वर्ड है, अर्जिऊन एक वर्ड है। जब दो वर्ड एक कलमे में आ जाए और पहले कलमे में जेर हो तो ये रा पूर हो जाएगी। फैजान समझ में आ रहा है? फैजान है? पढ़ना कैसे है सर? रब्बिरजिऊनी, 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 रा को पूर करके पढ़ना है। पूर करके पढ़ना है जी, ठीक। समझ में आया इसको हारिस इसको भाई? खींचना नहीं, मतलब खींचना नहीं है ना। रब्बिर जीऊनी, जी जी, रब्बिर जीऊनी। हाँ, कायदा समझ में आया? ये रा को खींचना है, खींचना पहला रब्बिरजिऊनी है ना, हाँ, पहला रा। जी, रब्बिरजिऊनी, रा के ऊपर उसको जबर है, खींचना इसलिए इस रा को जल्दी पढ़ेंगे। रब्बिर, जी उसको मोटा करना है ना, मतलब जबर। रब्बिरजिऊनी जी, इसको भी मोटा करेंगे, इसको भी मोटा करेंगे। जी। रा मतलब साकिन से, इसको रब, जी जी बोलिए। रब्बिर, नहीं मौलाना, इसको रब पढ़ना है, रब पढ़ना है। रा, रा को मोटा करके रा, पढ़ना, रा। रब्बिरजिऊनी। रब, ये कायदा समझ में आया जावेद भाई? नहीं ये तो समझ में आया मौलाना। आप जो बोल रहे हैं रा साकिन से पहले दूसरे कलमे में अगर वो ज़ेर है हो तो उसको पुर करना है। जी जी, इस तरह। अब देखिए, ये एक कलिमा है, क़िरातासिन, रा साकिन के बाद दूसरे कलिमे में, ये रा साकिन के बाद ता है हुरूफ मुस्तालिया में से, तो ये पुर है। अब देखिए, फफिर्रु, पांचवें कायदे में लिखे हैं कि रा मुशद्दद पर जबर या पेश हो तो रा मुशद्दद पुर होती है। ये तो आसान है, रा मुशद्दद पर अगर जबर है तो पुर, और अगर जेर है तो बारीक। फफिर्रु, फफिर्रु यानी मुंह भर करके पढ़ेंगे। मर्रतन, अब यहाँ से पढ़िए जावेद भाई। रब्बना, जी, ये रा, रब्बना, हाँ, ये रा पुर हो रही है बारीक? पुर हो रही है क्योंकि रा के ऊपर जबर है। जी माशाल्लाह। रब्बना, जी, आगे वाला पढ़िए। रऊफ, रऊफुन। ठीक है, यासिन भाई आप पढ़िए ये इसको। क्योंकि ये भी रा के ऊपर जबर है तो ये भी पुर होगा। वो साकिन से पहले पेश है तो वो उसको ये करना है, खींच के पढ़ना है उसको भी। जी, बस एक एक वर्ड ये पढ़िए होता बस। है। हाँ ठीक है, यासिन भाई आप इसको पढ़िए। रुब्बमा, रुब्बमा नहीं, रुबामा। रुब्बमा, हाँ, ये रा पुर है बारीक है? बारीक है। नहीं नहीं नहीं, अभी बारीक का तो हमने सबक ही नहीं पढ़ा है। बारीक का भी सबक ही नहीं पढ़ा है, सिर्फ पुर का सबक पढ़ा है। इसलिए मैं आपको कंफ्यूजन करने के लिए नहीं सोचा, उसको पढ़ा देता तो फिर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता। अभी सिर्फ पुर करने का पढ़े हैं। रा के ऊपर पेश है, कायदा क्या लिखे? कायदा नंबर 1 में रा के ऊपर जबर या पेश होता और रा पुर होगी, वही है। रा के ऊपर पेश है या जबर है तो पुर, ठीक है। जी इसको आगे वाले को पढ़िए आप ही। रुद्दुहा, रुद्दूहा, दो को खींचिए। रुद्दुहा, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब ये रा बारीक है पुर है? पुर है। माशाल्लाह, क्यों पुर है? इसके ऊपर पेश। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। हारिस भाई आप पढ़िए इसको। अरसलना, ये गाड़ी की तरह आवाज नहीं होना चाहिए। अरसलना, इस तरह नहीं, अरसलना। अरसलना जी, ये रा बारीक है पुर है? जी, ये पुर है। क्यों पुर है? जबर है, उससे पहले अलिफ के ऊपर जबर है, इसलिए पूरा। अरसलना, इस तरह बोलिए। अरसलना, हाँ, इस तरह बोलिए, रा साकिन से पहले जबर है। जी जी, रा साकिन से पहले जबर है, इसलिए पुर होता है। अरसलना, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कुरआन, जी, मुक्तदिर भाई चले गए। फैजान भी, फैजान है, फैजान आप पढ़िए आगे। जी मौलवी साहब।
यगरू का यगरुर का, यगरूर का ये रा बारीक है पुर है? पुर है मौलवी साहब, हाँ पुर है। क्यों पुर है? क्योंकि रा साकिन से पहले पेश है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। अब ये वाला बोलिए आप। मिर्सादन, ये पुर है या बारीक है? ये बारीक है। ये बारीक होगा। स्वाद नहीं, मोटा है, स्वाद है ना वो सब आगे। नहीं, मोटा है, पूरे अभी बारीक, क्योंकि वो अभी बारीक का सबक हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। ये ये भाई वो उससे पहले बात का पढ़ना मुश्किल होता, जी तो ठीक है। मालूम करना मुश्किल होता। रा स्वाद है साकिन ना के बाद आगे। साथ है। जी हुरूफ मुस्तालिया है। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मिर्सादन, यासीन भाई है? जी मौलवी साहब। हाँ आप इसको पढ़िए। क़िरतासिन, जी, ये रा बारीक है या पुर है? वो है। पुर है। क्यों पुर है? रा साकिन से पहले ज़ेर है। रा साकिन से पहले जेर होगा। रा साकिन से पहले इसके अगर जेर बाद होगा ना तो आगे आगे के कायदे में हम पढ़ेंगे रा साकिन से पहले जेर है तो बारीक हो जाएगी। रा साकिन के बाद देखिए ता है, ता हुरूफ मुस्तालिया में से है। अभी हुरूफ मुस्तालिया बोला ना मैं, खा साद जाद गैन ता काफ जा, आप लिखे ना। जी मौलवी साहब। तो ये हुरूफ मुस्तालिया में से ता है, इसलिए रा साकिन पुर हो रही है, ठीक है। जी मौलवी। ठीक है। जावेद भाई आप पढ़िए इसको। फिर 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 खातुन, फिरकातुन नहीं, फिरकतुन। फिर खातुन, ये रा क्या है? जी, इसका रा साकिन से के बाद खाफ है, जी तो पुर पढ़ना है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इरजी को पढ़िए। ये रा क्यों पूरे है, बारीक है? इरजी, इरजी, जी ये अब इसको जो है, अगर नेक्स्ट जो वर्ड है रा साकिन से पहले एक अम है तो उसको मिला के पढ़ा, अमिर तबू। इसका कायदा इस तरह है, रा साकिन से पहले अगर जेर आरजी है, ये असली नहीं है, ये कभी भी गिर जाएगा यहाँ से। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ इस जेर का, अब हम पढ़ते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन अगर उसको पीछे से मिला करके पढ़ेंगे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इमाम साहब पढ़ते होंगे मस्जिद में कभी कभी मिला करके नुहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते होंगे, तो वो जो अच्छा, ये इहदिना, दोनों मिला के पढ़ना है। फिरखातुर जी, हाँ ये मिलाकर पढ़े या ना पढ़े, ये क्या कहते हैं बारीक होगा। इसलिए बारीक होगा ये जेर आरजी है, असली नहीं है, ठीक है। इरजिई भी पढ़ेंगे तो ये पूरी पढ़ी जाएगी, बारीक नहीं होगी। बारीक मतलब कैसा आवाज निकालना उसको? बारीक मतलब जैसे नीचे देखिए रिमा हुकुम है, इसको रिमा हुकुम पूर करके नहीं पढ़ सकते, बल्कि इसको बारीक ही पढ़ना है। रिमा हुकुम। रब्बना ये मोटा है, रब्बना ये बारीक है। अरसलना मोटा है, अरसलना ये बारीक है, अरसलना अरसलना। समझ में आ रहा है? नहीं, इसको पढ़ने के साथ अरसलना पढ़ना है। हाँ अरसलना ये बारीक हुआ। रब्बना नहीं, अरसलना मतलब अर बोल का मोटा बारीक में फर्क नहीं मालूम पड़ रहा मौलाना। नहीं मालूम चल रहा है? देखिए हाँ, ये अरसल, जैसा आप बोल रहे, देखिए आप जो बोल रहे अरसलना बोल रहे आप, ठीक है, उसको बारीक कैसा होगा? वो भी अरसलना ही होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जब पूर करेंगे तो मुंह भर करके आवाज आएगी। अरसलना, 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 दोनों में देखिए फर्क। अरसलना, अरसलना, नहीं फर्क मालूम हो रहा है? जी मौलवी साहब। क्यों फैजा, ये हारिस भाई फर्क मालूम हो रहा है? फिर एक बार बोलिए मौलाना।
ارسلنا 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 मतलब जरा झटका देना, अरसलना, अर बोलते जरा ये हो रहा, अर अभी नॉर्मल हल्लू अगर पढ़ेंगे नहीं, ये अर 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 बोल के बोलना। हाँ, अर की आवाज नहीं आना, अरसलना। अरसलना, यहाँ देखिए उमिर तो है नीचे, ये बारीक है, उमिर तो ये बारीक है। जब इसको पुर पढ़ेंगे उमिर तो उमिर तो उमिर तो, ये कौन सा बारीक हो मौलाना गया। कहाँ पर है? यहाँ उमिर तो लास्ट में। आखिरी में। अच्छा नीचे, ठीक है। यहाँ देखिए मर्रतन, ऊपर, उससे ऊपर देखिए मर्रतन, अगर इसको बारीक पढ़ेंगे तो मर्रतन मर्रतन मर्रतन। मर्रतन। फैजान आपको फर्क मालूम चल रहा है? जी मुल्ली साहब, एक को रॉ पढ़ना है, एक को रा पढ़ना है। हाँ ये हुई बात, ठीक। एक को रा पढ़ना है, एक को रा पढ़ना है मर्रतन। जी। एक को मुंह भर करके निकालना है, एक को सीधा निकाल देना है। मर्रतन। हो जाएगी प्रैक्टिस करने के बाद, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अमीर और ताबू में आप बताइए फैजान, ये रा बारीक है या पुर है? बारीक है मुल्ली साहब। बारीक है, बारीक के तो अभी तक पढ़े ही नहीं हम। अलिफ पहले है ना उसमें? अभी तो ता है, आगे आगे ता है ना, ऐसे आगे ता आमिर। नहीं, ता तो हुरूफ मुस्तालिया में नहीं है। नहीं, हम एक एक वर्ड है ना मौलाना, सो उसको मिला के पढ़ना। अमीर तबू, अमीर ताब, अमीर तबू, अमीर तबू। बोलिए आरिस भाई। अमीर ताबू जी, और होगी बारीक अमीर होगी, छोटे से जो हुरूफ अमीर ताबू, और होगी बारीक होगी, जो पूर्व के मतलब अमीर ताबू। और क्यों होगी? क्योंकि दूसरे कलमे में वो जेर है, रा साकिन से पहले, दूसरे जी, जेर से माशाल्लाह दूसरे कलमे में। माशाल्लाह। यहाँ देखिए रा साकिन से पहले दूसरे कलमे में जेर है। मुक्तदिर भाई है क्लास में? है मुल्चा? नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं मुल्चा भाई। अच्छा, ठीक है। आप पढ़िए रब्बिरजिऊनी, आप पढ़िए कौन मुल्चा में? ये वाला, हाँ जी जी, लास्ट लाइन। रब्बिरजिऊनी। ये रा पूर है बारीक है? बारीक है। ये बारीक भी क्यों पूरा है? होगा मौलाना, क्योंकि रब एक वर्ड है। जी जी जी, मुक्तदिर आगे भाई। जी में तो पूरा होगा ना सब, रब्बिरजिऊनी। नहीं, जी में लेने से जिम नहीं, हुरूफ मुस्तालिया में खा साद जाद गैन ता काफ जा। बताइए मुक्तदिर भाई, बारीक या पूर? मुल्चा बारीक है कि पूर है? मौलाना ये जो है रा साकिन से पहले एक वो जो वर्ड है उसके अंदर रब एक वर्ड है, जी जेर है, तो उसको पुर करना है। जी, रा साकिन से पहले रब, रब एक वर्ड है, नहीं जेर है, ये तो रा, उसको पुर करना है। ये रा तो ये पूर ही रात होगी, क्योंकि इस रा के ऊपर तो जबर है। ये रा तो हमेशा हाँ पूर ही होगा, लेकिन इस रा की बात चल रही है। नहीं, ये वही है, ये रा जो है आपका दूसरा जो अलिफ के बाद है, जी रा जी साकिन से पहले जो वर्ड है रब, जी, तो एक अलग है, तो उसको मिला के पढ़ना है। इसको मिला करके पूर पढ़ेंगे। रब्बिरजिऊन, रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में है, इसलिए रा साकिन पूर होगी। मुक्तदिर भाई आप बताइए। रब्बिरजिऊना, रब्बिरजिऊना। नी है नी। मुक्तदिर भाई ठीक है, जी मुल्चा। बताइए एराब पूर होगी या बारीक होगी? आपने तो बताया ही नहीं। बारीक होगी मुल्चा। बारीक क्यों होगी? आपने सबक सुना नहीं सुने मुल्चा, है? सुने। अभी बारीक का तो हमने सबक ही नहीं पढ़ाया, सिर्फ पूर का सबक पढ़ाया है। देखिए रा साकिन है, रा साकिन से पहले दूसरे कलिमे में जेर है,
समझ में आ रहा है? ये देखिए रब है, रब एक कलिमा होता है ना, एक वर्ड होता है ना। जी एक मिनट, रब एक कलिमा होता, अर्जिऊनी एक कलिमा होता। समझ में आ रहा है? दो कलिमा हो गया ना। तो रा साकिन से पहले दूसरे कलिमा में जेर आए तो रा साकिन बारीक होगी, रा साकिन पुर होगी। हाँ, जब एक ही कलिमे में आए, जैसे उमिर तुम्हें देखिए रा साकिन से पहले जेर है, एक कलिमे में है, इसको कल पढ़ेंगे तो ये बारीक होगी। लेकिन जब दूसरे कलिमे में आता है तो रब्बिरजिऊनी, या इस तरह भी ध्यान रख लीजिए, ये जो बीच में अलिफ आ रहा है ना, अलिफ, जिस जेर के बीच में अलिफ खाली वाला आ जाए, खाली वाला, तो समझो वो रा पुर है। ये ध्यान रखने के लिए बोला मैं, ठीक है? हाँ, अब फफिर्रो में बोलिए रा बारीक है पुर है? इसमें बारीक है मुझे। पूर्व है। अभी तो हमने बारीक की सबक ही नहीं पढ़े हैं। पूर्व होगा मौलाना, क्योंकि रा साकिन के ऊपर जो है नीचे जेर आ रहा है तो उसको नहीं, रा साकिन नहीं बोलेंगे, तो इसको रा के ऊपर पेश है ना, इसलिए रा मुशद्दद के ऊपर पेश है। हाँ, मुशद्दद के ऊपर पेश है। जी जी, जबर और पेश रहा तो पूर करना है। जी जी, समझ में आया मुख्तदिर? तो फिर क्या है, पूरा बारीक है? ये मुसाफ फवुर फिर ठीक है, रा के आप सबक सुन लीजिएगा, आपका छूट गया है सबक, आपका शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है? जी मुसाफ। हाँ, कल सुनाना, नहीं तो डंडी लेकर आ जाऊंगा मैं, ठीक है? मर्रतन, देखिए रा मुशद्दद के ऊपर जबर है, इसलिए रा मुशद्दद पूरा है। इसमें कुछ डाउट है? नहीं, मर्रतन रा दूर से आना है। मर्रतन जी, एक मिनट बाकी है, ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा। अगर और समझना चाहते हैं, फिर से जो नहीं समझ में आया तो फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। आप बता दीजिए जावेद भाई। नहीं मौलाना, फिर उसको प्रैक्टिस करते एक बार, कल देखेंगे, कल एक घंटा ले लेंगे अपन लोग। कल यही रहते सबक और एक बार